Hello friends, welcome to TechCube Gate class. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Government Engineering College Bilaspur, Chhattisgarh. I have done MTech from NIT Delhi in Electronics and Communication, and I have also qualified ISRO exam, State Public Service Commission and GATE exam, and even I have published 2 SCI International Journal and 4 national journals. So in this video lecture series, I am dealing with signals and system subject, and in the last lecture we have completed Fourier transform, some properties. So today in the lecture 4 of module 4, okay, we'll deal with more properties of Fourier transform, and it is almost the second last class of Fourier transform, and then in next class we'll try to finish up Fourier transform, and then Laplace transform are there. Okay, so in this video lecture series, in this video lecture particularly, I will deal with duality property, area property, and frequency differentiation property, time differentiation property, or time differentiation property. Already we have seen multiplication by t. What happens to a signal when we multiply t in time domain, and then we have already seen Parseval's power relation in Fourier series. Now we'll see Parseval energy relation in our this aperiodic signal, and then convolution property and time integration property. So this much property we will be seeing today. So let's get started. So we'll start with our first property, that is duality property. This is very important property, okay, for Fourier transform. We'll see some numerical question also based on this property. Duality property says that if our signal, if we are taking f of t, this is in time domain, okay, and if we are doing Fourier transform of f of t, what we will get f of omega, okay, f of omega will get, this is in frequency domain, okay. So I'll write here, this is in time domain and this is in frequency domain. So, and whenever we want to take inverse Fourier transform, means we want to convert from frequency domain to time domain, what we will take? Inverse Fourier transform we will take, okay, that you know, okay. So according to duality property, if f of t is f of omega and you want that whatever the expression is in f of omega, just you like e to the power, let's suppose e to the power j omega is there, okay. Let's suppose this is the Fourier transform of some signal like this. Now what you want a signal e to the power jt, and you want its inverse Fourier transform, means in the expression only you have changed from omega to t, that's it, okay. So whenever this type of thing happens, whenever you want f of omega is there, you want f of t will be there, means just you have changed whatever omega will be there in the expression, you have changed from omega to t, and now you need to take Fourier transform, because now this is in t. So if you want to take Fourier transform, what you will get of 2 pi f of minus omega, this is, okay. So this is actually a duality property. Duality property says that ft can be converted to f of omega because this is Fourier transform. So this is a duality property, okay. Whenever we want to convert f of t into f of omega, we will take Fourier transform, and if you want from omega to t in the same expression, okay, then what you will do, the Fourier transform f of t, and from there you will get 2 pi f of minus omega, means इफ आई से इन हिंदी, अगर आपको कभी भी एफ ऑफ ओमेगा वाला एक्सप्रेशन में अगर आपको सिर्फ ओमेगा को रिप्लेस करके टी को रखना है, तो आप क्या करिए, उसका जब आप बेसिकली इसका जो एफ ऑफ टी था ना, एफ ऑफ टी जो ये वाला एक्सप्रेशन था टी वाला में, उसमें आप क्या करिए, टी को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिए और 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी को डुअलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर सम क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. You have been asked to find Fourier transform, okay. You have been asked to find Fourier transform, find the Fourier transform of let's suppose you have been given a signal f t is equal to 1 by a
a plus j of t. This is your question and you have been asked to find the Fourier transform. देखिए बेसिकली ये t में है तो ये टाइम डोमेन में होगा, तो ऑब्वियसली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ही हमको खोजना होगा. विल नीड टू फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म बिकॉज फ्रॉम टाइम डोमेन to frequency domain is the only tool to the tool to convert time domain to frequency domain is Fourier transform. So we will need to calculate. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या, ऐसा नहीं है. टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन विल नीड फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके फाइन, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ इशू. वी नीड टू कैलकुलेट इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. लेकिन अब आपको क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका आपको पता है क्या? फोरियर ट्रांसफॉर्म इज, अगर हमको f of omega, if we need f of omega, what we need to do, minus infinite to infinite f of t e to the power minus j omega t dt. This is the actual formula for calculating f of omega. But what you will do, you will keep this 1 by a plus jt e to the minus j omega t, and then when you will solve, you'll feel that it is a long process to solve. So we'll not opt for that because we are eyeing for a competitive exam. So what we'll do, we'll apply some property. How we'll apply? See, as you know that e to the power minus at u of t we have already solved. Its Fourier transform was what? 1 by a plus j omega. You know that. So this equation is something looking like that, 1 by a plus jt, 1 by a plus j omega. What they have done, they have done just replacement of omega to t. So whenever we need to do that, whenever we need to take Fourier transform of this type of signal which is replaced by only omega to t, then we can apply duality property. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पाई सामने रख देंगे और जो भी यहाँ पे f of t था, है ना, उसमें आप ओमेगा को t को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस a है और माइनस ओमेगा है u ऑफ माइनस ओमेगा. दिस विल बी योर आंसर. सो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 बाय a प्लस जे टी फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू 2 पाई e टू द पावर a ओमेगा u of minus omega. This is your answer. So it was just as simple as that. अगर आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऐसे बोलता है, if you have been asked to directly find Fourier transform of this type of signal, you'll feel difficult by calculating from this formula. So better to, if you know the duality property, then you can directly find this type of solution. So we'll solve with some other questions also. Let's see question number second. Okay, let's find the Fourier transform of sampling of t. Okay, sampling of t is given and you need to find the Fourier transform of sampling of t. So what you will do, see, if you will do with the conventional formula, because see, यहाँ we are studying properties in this segment, so you know that I am dealing with duality property. So if I will ask you the question, so definitely your mind will go for duality property only. But in exam, whenever you will face the exam, so many different question, control system, network analysis, many question type of subjects will be there, many types of question will be there from signal and system also. So suddenly you have been asked find the Fourier transform of sampling of t, your mind will not click for duality property actually. So first what you need to do, first you need to check that is it possible to calculate from minus infinite to infinite sampling of t e to the power minus j omega t dt. But you'll feel that no, this will create so much trouble, so this is not the good property to go. Then suddenly your mind should click that okay, I know that this equation is there, minus t by 2 to t by 2 and 1. This Fourier transform, I know that this Fourier transform is nothing but t of sampling of omega into t by 2. This I know. Now what you need to do, if you'll do t by 2, let t by 2 is equal to 1. So what you will get, t is equal to 2. So you can keep the formula here,
to sampling of, okay, omega, and what you will get, because see here, actually this t by 2 minus 1 to 1 and 1. So whenever you will calculate this signal, Fourier transform, or you can also say that ye we can remove this 2 here, and we can keep here minus 2 divided by 2, means we will do divided by 2 in both sides, so you will get this. So ultimately I can say that sampling of omega means this signal Fourier transform if you take, then you will get sampling of omega डेफिनेटली। ओके, यू कैन डू, अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन आपको पूछता है कि एक गेट पल्स दिया हुआ है -1 से 1 हाफ, तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में व्हाट यू विल बी देयर, एरिया विल बी देयर, सो यू विल कैलकुलेट एरिया विल बी बेस इनटू हाइट 2 इंटू हाफ मतलब 1, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू विड्थ बाय 2 होता है, विड्थ कितना है 2 बाय 2 मतलब 1, तो यहाँ तो अल्टीमेटली इस वाले क्वेश्चन में मतलब ये वाला अगर इफ यू हैव गिवन दिस पल्स एंड you have to calculate Fourier transform, you will definitely calculate sampling of omega. Now अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें duality property लगा सकते हैं। duality property के मतलब अगर हम ये एक्सप्रेशन में if we are replacing omega to t, then what we will get, and we'll get take, because this is in time domain, so now we are taking frequency Fourier transform, what we will get, we will get 2 pi f of minus omega, 2 pi f of minus omega we are getting। तो जनरली आप ये वाला पोर्शन है, ये t वाला पोर्शन, यहाँ t को रिप्लेस करके माइनस ओमेगा रख सकते हैं, तो आप इसको जस्ट पलट दीजिए, क्योंकि बेसिकली ये f ऑफ t है ना, f ऑफ t अगर यही f ऑफ ओमेगा में है और माइनस साइन में है, तो टाइम रिवर्सल मतलब जो रिवर्सल होता है वो हो जाएगा, तो ये सिग्नल को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स में भी सेम ही दिखेगा, तो -1 से 1, और मैग्नीट्यूड में 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड में already it was half, so you'll get 2 pi by into half, so you'll get ये कटा आंसर आया पाई। so now finally you have got your answer that sampling of t, अगर हम we are taking Fourier transform of sampling of t, what we will get a gate pulse of -1 to 1, and you will get of pi। okay, this is very important expression, you need to remember this type of expression, because अगर क्योंकि ये जो सैम्पलिंग ऑफ टी है ना, ये आपको हर जगह दिखेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट सैम्पलिंग ऑफ टी आपको पूछा जाएगा, तो आप इतना अगर इसमें मान लीजिए हमारा 2 मिनट भी जाता है, 1 मिनट भी जाता है, इफ यू आर स्पेंडिंग 1 मिनट ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैम्पलिंग ऑफ टी, यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, सो क्यों हम लगाएं इसको डायरेक्टली, अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं कि भैया सैम्पलिंग, जैसे हमने एक चीज मेमोराइज किया, क्या मेमोराइज किया है, what we have memorized कि अगर हम माइनस t by 2 से t by 2 1 हम लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, t ऑफ सैम्पलिंग ओमेगा इंटू टी बाई 2, ये हम लोगों ने अभी मेमोराइज कर लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है, और इसी से देखिए हम इस चीज को सॉल्व भी किए हैं, वी हैव सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको ना एक और एक्सप्रेशन याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन मतलब बहुत हैंडी टूल है, इट इज अ वेरी हैंडी टूल, एंड इट विल helpful for your next further questions also। so sampling of t का Fourier transform होता है -1 से 1 pi, okay, -1 से 1 pi will take, that is called sampling of t। okay, fine। now if I will ask you some more question, like this is your homework, you need to do and post in telegram group। आपको ये क्वेश्चन देता हूँ कि f of t अगर आपको दिया है 1 by pi of t, तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके बताइए। और आपको एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, एफ ऑफ टी अगर आपको सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर टी अगर आपको बोल रहा है, जैसे सैम्पलिंग ऑफ टी मैंने निकाल लिया, तो सैम्पलिंग ऑफ टी ये होता है ना, और तो सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर टी क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जरूर निकालिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे सैम्पलिंग ऑफ 5t, ये कम से कम ऐसे क्वेश्चन हैं, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, ये बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ओके फाइन। इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू
sampling of t, इसका Fourier transform you need to calculate. तो ये these three question I am giving you homework. You can solve it and you can post it in Telegram group. I am there. I'll try to help you if you are wrong. Okay, next property. If you have understood the duality property, आप कहीं पे भी duality property लगा सकते हैं. आपको you need to understand the concept or theme behind the all property when we have to apply. जब whenever we need to replace omega to t in the expression of omega, f of omega is given, you just need to replace from omega to t. What you need to do, you need to do f of 2 pi into f of minus omega, means whatever f of t was there, you just change from t to minus omega and 2 pi multiply in magnitude. इतना ही duality property था. Now we'll go for area property also. So we'll deal with next property, that is called area property. Area property of Fourier transform. Okay, so what does area property of Fourier transform says? देखिए, area property का मतलब ये होता है कि if your f of t is given and you are calculating Fourier transform, that is f of omega. Okay, so ultimately what we are doing, how you are doing Fourier transform means f of omega you need to calculate what you are doing, minus infinite to infinite f of t e to the power minus j omega t and dt. This by this expression or mathematical operation you are calculating Fourier transform. So let's suppose ki for if you need to calculate for omega is equal to 0, what you will get, f of 0 will get a minus infinite to infinite f of t e to the power minus j 0 t dt. So you will get minus infinite to infinite f of t e to the f of t into f of t into dt. Okay, so we'll write f of t into dt. You can see that any signal, f of t क्या है, f of t is a signal in time domain. What we are doing integrating it from minus infinite to infinite. मतलब जैसे let's suppose कि आपका f of t is nothing but like this, some values there. So this is your f of t. अब आप क्या करने जा रहे हैं, यू आर इंटीग्रेटिंग माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जो भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो भी वैल्यू है वो सब वैल्यू को आप ऐड करने जा रहे हैं. इंटीग्रेट का मतलब ही ऐड होता है. तो आप और ये इंटीग्रेशन है क्योंकि एक कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में है ना. तो what we are doing, we are integrating from minus infinite to infinite, whatever value will be there in your ft will add up, है ना. तो अल्टीमेटली हम इनका एरिया एक्चुअली निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको कोई सिग्नल का माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी डी टी निकालना है, वेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड integration of f of t from whatever signal you have been given and you have been asked to integrate it from minus infinite to infinite, what you need to do, you need to calculate its f of omega. आप इस f of t का f of omega निकाल लीजिए और f of omega में omega की वैल्यू 0 रख लीजिए और तब आपको f of 0 आ जाएगा और यही इसका एक्चुअली आंसर है. दिस इज द एरिया प्रॉपर्टी. एरिया प्रॉपर्टी से हमको यही समझ में आ रहा है कि कभी भी आपको वेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ f of t from minus infinite to infinite, the easiest way to solve this is take its Fourier transform f of omega and keep omega की value omega value 0. You will get f of 0 and this is actually the answer of integration of minus infinite to infinite f of t dt. This is actually answer. This is area property. हम दूसरे तरीके से भी हम इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. जैसे आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी याद होगा. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, अगर आपको f of t चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1/2 पाई, ओके, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f of omega e to the power j omega t d omega. This is your standard expression for calculating inverse Fourier transform. Now whatever you need to ask, see, let's suppose for
t is equal to 0, what you will get? f of 0 is equal to 1 by 2 pi minus infinite to infinite f of omega e to the power j omega 0 d omega, and what you will get? 1 by 2 pi minus infinite to infinite f of omega d omega। देखिए फिर से एक एक्सप्रेशन आ गया, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पाई को यहाँ पे ले जाइए, 2 पाई को इधर ले जाइए, f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ ओमेगा d ओमेगा। देखिए दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है, मान लीजिए एक आपका सिग्नल है, लेट सपोज कि आपका सिग्नल है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेट सपोज ऐसा कुछ है ना, ये आपका ओमेगा की वैल्यू है। अब आपको बोलता है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू नीड टू इंटीग्रेट इट। तो इसका सबसे बेस्ट, अब इंटीग्रेट करेंगे, हो सकता है एक्सप्रेशन कुछ लंबा चौड़ा है, मेथड इंटीग्रेशन करने में टाइम लग जाए, तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका एफ टी निकाल लीजिए, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से एफ ऑफ टी निकाल लीजिए, और आप क्या करिए, टी को 0 रख दीजिए, है ना, दिस इज टी इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इज टी इज इक्वल टू 0, और आप 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना सा एक्सप्रेशन है, इसको हम एरिया प्रॉपर्टी बोलते हैं, सिंपल सा। आपको प्रॉपर्टी को समझने की जरूरत है, फिजिकल मतलब वैसे रियलाइज करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझने की, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो क्वेश्चन फटफट बनने वाले हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताया ही था कि अगर आपको एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन चाहिए तो आप क्या करिए, एफ ऑफ जो ओमेगा है ना, ओमेगा में 0 रख दीजिए और आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, टी को वैल्यू को 0 करना है और 2 पाई मल्टीप्लाई करना है, अगर ओमेगा में आपको इंटीग्रेशन करना है, इफ यू नीड टू डू दैट। सो लेट्स डू इट। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स डू इट विद सम क्वेश्चंस। सो विल ट्राई विथ वन ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सपोज आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, आपको अगर क्वेश्चन बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, सॉरी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं बोल रहा है, चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा आपको सिंपल ऐसा बोल रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अगर आपको बोलता है साइन ऑफ टी बाय टी डी टी। नाउ सी, अगर आप देखते हैं, ओके, सडनली यू विल सी दिस क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम, गेट एग्जाम or any of the exam. If you see suddenly this type of question, what you will see, this question may be from mathematics, and how we can do calculation, we'll do integration and we'll do something and something, but that is long method again. Then you should click in, there should be a click in your mind that we can also solve from एरिया प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमको एक ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन को अगर हम लोग बोल दें कि ये एक्सप्रेशन तो एफ ऑफ टी है, मान लीजिए ये कोई एक सिग्नल है एफ ऑफ टी, आप क्या कर, आपको पूछा क्या जा रहा है कि एफ ऑफ टी जस्ट इंटीग्रेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी डी टी, ये आपको सिंपल से पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करिए, आपको पता है कि जब भी ऐसा पूछा जाता है तो आप सिंपल आप करिए कि एफ ऑफ टी को ना एफ ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप ओमेगा की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो आपको सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको सिंपल इसका इंटीग्रेशन मिल जाना है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल सा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी डी टी का अगर आप वो करते हैं तो आप इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऐसा है, इक्वल टू लगा लेता हूँ एफ ऑफ ओमेगा फॉर ओमेगा की वैल्यू 0, सिंपल, यही इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसका उसके लिए एफ ऑफ टी का एफ ऑफ ओमेगा भी तो निकालना है ना। तो देखिए एफ ऑफ टी हमने माना है, व्हाट वी हैव कंसीडर्ड एफ ऑफ टी है साइन टी बाय टी, इसका हमको एफ ऑफ ओमेगा निकालना है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सैम्पलिंग ऑफ टी। और अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन याद करने के लिए बोला था, क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसे टाइप क्वेश्चन बार बार आपको दिखने में मिलेंगे। तो देखिए अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो फिर से मैं आपको 1 मिनट के अंदर में इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए आपको ये सिग्नल स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। ये सिग्नल है माइनस टी बाय टू से टी बाय टू,
और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, और ये क्या है, ये टाइम डोमेन में है ना, टाइम डोमेन में। और इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आपको मिलता है मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एरिया, एरिया मतलब t इंटू 1, तो t है ना, t सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू विड्थ बाय 2, विड्थ कितना है t बाय 2 है ना। ये तो आपको याद है, मैं आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर आल्सो, दिस लेक्चर आल्सो आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको कभी भी कुछ जैसे सैम्पलिंग ऑफ टी चाहिए है ना, तो आप क्या करिए, देखिए टी चाहिए आपको, तो पहले बात तो आप क्या करिए, टी को तो छोड़िए, आप ये टी बाई 2 को पहले आप कर लीजिए, टी ये जो टी बाई 2 है ना, ये कहाँ गया, इसको ये टी बाई टू को आप क्या कर लीजिए, 1 आप मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा है ना, -1 से 1, अभी भी ये टाइम डोमेन में ही है ना, टाइम डोमेन में ही है, और इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 1 है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, देखिए टी बाई 2 को आपने 1 मान लिया है, तो टी यहाँ पे आ गया 2 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू 1 है ना, और ये 2 भी यहाँ पे अगर आप दोनों साइड 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 और 2 कटा, तो यहाँ पे आ गया। तो फाइनली देखिए आप ये मान सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है -1 से 1 और 1/2, इसका ये टाइम डोमेन में है ना, टाइम डोमेन में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा है ना। अब डुअलिटी प्रॉपर्टी से क्या करते हैं हम लोग, जब भी एस ऑफ ए टी करते हैं, मतलब ओमेगा को टी कर देते हैं, और ठीक है, तब हम क्या करना होगा, यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो हमको ये जो है टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा, मतलब बस लिखना होगा, और इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो भी है इसका रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स में सेम आंसर आएगा, इट विल बी ऑफ सेम आंसर -1 से 1, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम, 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई 2 पाई मैग्नीट्यूड, तो 2 पाई इंटू 1/2 रहेगा, तो यहाँ कटा, आंसर आ गया। तो देखिए आपको हमेशा मैं आपको बार बार इसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैम्पलिंग ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 से 1 ऑफ पाई है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई। ये एक्सप्रेशन मैं आपको फिर से बताया, ये एक्सप्रेशन किस उसमें है, फ्रीक्वेंसी में, तो ये फ्रीक्वेंसी में आपको लिखा है। अब आपको क्या करना था, मैं आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आपको -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैम्पलिंग ऑफ टी dt करना था, तो आप क्या करिए, सैम्पलिंग ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये ले लिए। अब आप क्या करिए, ओमेगा की वैल्यू 0 रख के देखिए, मतलब ओमेगा की वैल्यू 0, तो ये ओमेगा की वैल्यू 0 है, इस पे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, या फिर क्या इसका मैग्नीट्यूड है, पाई इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो पाई इसका अब हम लोग मैग्नीट्यूड रखते हैं आंसर। सो देखिए अल्टीमेटली आपको क्या बोला जा रहा था कि आप जब भी यू नीड टू कैलकुलेट एफ इंटीग्रेशन ऑफ -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी, आप करिए क्या, उसका एफ ऑफ ओमेगा निकालिए, और ओमेगा की वैल्यू 0 पे जो भी आंसर है वही इसका इंटीग्रेशन का आंसर है, तो हम इसका ओमेगा की वैल्यू 0 पे क्या आंसर है, पाई, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आया वो पाई है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, so we'll see one, I'll give you one question, you need to solve this, this is your homework. You need to evaluate minus infinite to infinite sine of square t by t square. Okay, this is your homework. I have already told you about sine t of t by t, and now you need to calculate sine square t by t square. Okay, fine. So let's see if you can do it. If you will not do it, if you will unable to do it, then post in Telegram, I'll try to help there. Okay, so let's see. And earlier I have given you one more question, this question as a homework. This question also remember it, answer should you should remember, because see, sampling of t we have already seen कि -1 से 1 पाई होता है इसका, ये अब हमारे दिमाग में बैठ गया है ना, -1 से 1 पाई होता है सैम्पलिंग ऑफ टी। वैसे ही आपके दिमाग में जब इसका आंसर आप निकालेंगे, तो सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर टी भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अगर आपको अब नहीं बैठा, तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसी से आपको ये भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर टी इज नीडेड, सो अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ। सी एक क्वेश्चन है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपको बोल रहा है, सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा है ना, e⁻ -j ओमेगा बाय 2। इसमें क्या है, एक दो और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, इसलिए
इस क्वेश्चन को करके मैं बताता हूँ। ओके फाइन, दिस क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आना चाहिए, आप एग्जाम में हैं। सो ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से बनेगा क्या? मैथमेटिक्स से बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर हम क्या करें, व्हाट विल डू, यू विल सी कि देखिए अल्टीमेटली पूछा क्या गया है। पूछा तो ये गया है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये पोर्शन कुछ है और किस डोमेन में है, ओमेगा ओमेगा डोमेन में है, डी ओमेगा में वो हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये इसको हम लोग एफ ऑफ ओमेगा मान सकते हैं, है ना, इस इक्वेशन को हम लोग एफ ऑफ ओमेगा मान सकते हैं। और अब क्या कर सकते हैं, आपको पूछा जा रहा है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यू नीड टू इंटीग्रेट एफ ऑफ ओमेगा। तो हमको ये भी पता है कि कभी भी आपको अगर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ ओमेगा डी ओमेगा अगर आपको इवेल्युएट करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एफ ऑफ ओमेगा को एफ ऑफ टी में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए और आप क्या करिए, 2 पाई वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे टी को वैल्यू को आप 0 कर दीजिए, है ना। तो आपका ये इक्वेशन सॉल्व आसानी से हो सकता है। तो क्यों ना आप हम वैसा करके देखते हैं। एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाय 2। दिस इज योर एफ ऑफ ओमेगा। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इट्स एफ ऑफ टी। आपको एफ ऑफ टी एक्चुअली में निकालना है इसका, है ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले आप इसको मान के चलिए, फिर आप इसमें जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल, वो तो हमको आगे पता है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह सब हमको पता है। तो हम सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा करते हैं। अब आपको सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा करने के लिए अल्टीमेटली क्या करना होगा देखते हैं, चलिए। आपको ये याद है क्या कि हम ऐसा करते थे, ये है सिग्नल, ये होता था माइनस, हम टी लेते थे और ये मैग्नीट्यूड 1 लेते थे, एंड इट्स दिस वाज इन योर टाइम डोमेन, है ना, टाइम डोमेन में हम लेते थे। और इसका जब हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करते थे, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म करते थे, सो व्हाट वी यूज्ड टू गेट, पहले एरिया मैग्नीट्यूड में एरिया लेते थे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है 2t इंटू हाइट क्या है 1, है ना। तो यहाँ पे आ जाता था t सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा इंटू विड्थ बाय 4। विड्थ कितना है 2t, है ना, 2t है विड्थ आपका, एक मिनट, हाँ विड्थ आपका, इसको मैं मिटा ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। विड्थ आपका टी विड्थ बाय 4 है, विड्थ 2t है, 2t बाय 4 होता है, तो ये हो जाता है t बाय 2। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका है क्या, t ऑफ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा इंटू टी बाय 2। अब देखिए यहाँ पे सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा पूछा है। एक काम करते हैं कि ना, ये जो t है, एक काम करते हैं, लेट t बाय 2 इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, है ना। तो हमारा ये क्या आएगा, ये इक्वेशन आपका आएगा, ये हम लोगों ने t बाय 2 है तो t इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे आ गया -2 ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालना चाहें तो क्या निकलेगा आपका, इसका निकलेगा आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट टी हमारा 2 हो गया, तो 2 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा, है ना। और अगर आप ये 2 को भी हटाना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर लीजिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। सो सी व्हाट वी आर डूइंग, हम एक्चुअली इस सिग्नल का, ये वाला जो सिग्नल है ना, ये किस में है, टाइम डोमेन में, है ना। ये टाइम डोमेन का ये वाला जो सिग्नल है, इफ वी आर टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस टाइम डोमेन सिग्नल, तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस सिग्नल इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि हमको ये पता है कि हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे थे एक्चुअली, है ना। हम एफ ऑफ ओमेगा सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा, तो बेसिकली सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, इस सिग्नल का। तो ये तो हमारा निकल आया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका जब कभी भी आपको कोई फ्रीक्वेंसी में अगर आपको सैम्पलिंग ऑफ, जैसे आपको अगर याद होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, एफ ऑफ ओमेगा करते थे, एफ ऑफ ओमेगा में अगर आप ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी कर देते थे, है ना, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, तो हमारा क्या होता था, देखिए एक काम करता हूँ मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी है, मान लीजिए,
हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर आपका आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का, है ना, इसका आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली आप चाहते हैं, एफ ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का है, तो आपको ये सिग्नल मिलने वाला है ना। और कभी भी आप अगर ऐसा करते हैं कि मान लीजिए एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट कर दिए, है ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो व्हाट विल गेट, एफ ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी नॉट, यही हम करते हैं, ये तो हम टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में हम देख ही लिए हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ओमेगा में, एफ ऑफ ओमेगा आपका एक सिग्नल था, एफ ऑफ ओमेगा मतलब अगर आप बोले छोटा सा, पहले आप इतने को मान के चलिए कि ये एक सिग्नल है छोटा सा, सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा, इसमें आपने ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाय 2 कर दिया है ना। तो आपने क्या किया है कि सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा में ई टू द पावर जे ओमेगा बाय 2 कर दिया है। तो आप इसका सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा का, लेट सपोज कि इसका जो भी एफ ऑफ टी था, मान लीजिए यही आपका एफ ऑफ ओमेगा है, या जी ऑफ ओमेगा है मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए ये वाला जो सिग्नल है ये जी ऑफ ओमेगा है, और जी ओमेगा में आपने क्या किया कि ई टू जे ओमेगा बाय 2 कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप इसका जी टी निकाल लीजिए, है ना, जी टी, ठीक है, टी प्लस आपका टी बाय 2, 1/2, सॉरी 1/2, है ना। तो देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या आपका कि अगर आप देखिए, मैं सिंपल बोल रहा हूँ इसको, जैसे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जी टी प्लस 1/2 है, ठीक है। अगर आप ये बोलें जी टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, जी ऑफ ओमेगा, है ना। अगर आप जी टी प्लस 1/2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ ओमेगा, ठीक है, जी ऑफ ओमेगा तो मिलेगा ही, ई टू द पावर जे ओमेगा हाफ मिलेगा आपको, यही तो हम निकाल रहे हैं। देखिए ये जी ऑफ ओमेगा है और ये क्या है, ई टू द पावर जे ओमेगा हाफ है। तो अल्टीमेटली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जी टी प्लस हाफ। तो अल्टीमेटली देखिए आपको जी टी तो आ चुका था बेसिकली, अगर आप देखें तो ये आपका बेसिकली जी टी है, तो आपको क्या करना है, जी टी प्लस हाफ करना है। तो ये हाफ आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो इसमें हाफ हम टी प्लस हाफ करके देखते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में आई थिंक माइनस जे ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो ये सॉरी ये आपका आ जाएगा टी माइनस हाफ, है ना, ये आपका टी माइनस हाफ है। तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, टी माइनस हाफ एक्चुअली करना है। तो इसका इस सिग्नल में टी माइनस हाफ तो कर ही सकते हैं आप, टी माइनस हाफ का मतलब होता है कि आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए। ये सिग्नल आपका था पहले, ठीक है, -2 से 2, और इसका एम्पलीट्यूड कितना था, इसका एम्पलीट्यूड था हाफ, है ना, ये हाफ है। इसको आप क्या करिए, टी माइनस टी बाई 2, इसको आप करिए, ये आपका टी में है तो टी माइनस हाफ आप कर लीजिए, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा आप करेंगे तो दोनों में प्लस हाफ आप कर दीजिए, 2 प्लस हाफ और यहाँ पे प्लस हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। यहाँ पे बेसिकली ये सिग्नल तो ट्रायंगुलर ही बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे 5/2 से ये स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कहाँ से खत्म होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 मतलब -4, ठीक है। तो -3/2 से स्टार्ट होगा, तो यह -3/2 से स्टार्ट होगा बेसिकली ये सिग्नल। तो इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट ऐसा करेंगे, ये आपका ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगुलर, ये। अब आप देखिए ये है फाइनल हमारा, जो हम एक्चुअली आप अगर इसको बोले कि सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा हाफ का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म बोले तो ये है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइनल, है ना। ये फाइनल कैसे आया, ये लंबे चौड़े प्रोसेस, लंबे चौड़े क्या सिंपल तो किए हम लोग, कुछ किए, वी हैव नॉट डन नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा, उसके बाद हम लोगों ने ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाय 2 करना था, तो हमने टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा। अब आपको बेसिकली करना क्या है, मैं आप अल्टीमेटली हमको क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन कब आता, जब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है, जब आप एफ ऑफ टी निकाल लीजिए, ये टी है, एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी में 2 पाई मल्टीप्लाई करके उसका जीरो वाला पॉइंट पे आप इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए। तो अल्टीमेटली देखिए आप निकालने जा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे इसका पहले मैग्नीट्यूड कितना था, हाफ था, है ना, हाफ। ये हाफ को आप क्या कर लीजिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 पाई से आप मल्टीप्लाई करके 2 पाई इंटू हाफ आप कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा पाई, और पाई आ गया ये पॉइंट पे,
ठीक है, पाई आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेसिकली, देखिए एफ ऑफ जीरो निकालना है। एफ ऑफ जीरो तो बेसिकली ये है एफ ऑफ जीरो, मतलब ये पॉइंट पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आपको निकालना होगा। तो ये पॉइंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले तो आप स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप आप निकालिए पाई, ठीक है, ठीक है, पाई माइनस जीरो, ठीक है, बाय ये वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू जीरो से हाफ खसकी हुई है, तो ये हाफ वैल्यू है, तो हाफ माइनस ऑफ -3/2 है ना, ये हो गया। तो आपका यहाँ थोड़ा सा इसको मैं इसको स्क्रीन को डाउन साइड ले आता हूँ, है ना, तो आपको शायद दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे आ गया पाई बाय हाफ, कितना हो गया, ये हो गया 2/2, ठीक है, ये 4/2 पाई/2। तो इसका जो स्लोप है वो कितना आ गया, पाई/2। अब बेसिकली देखिए यही हुआ ना स्लोप, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय दिस हाफ माइनस ऑफ -3/2। तो यहाँ पे आ गया 4/2, तो 2 हो गया पाई/2, ठीक है। अब पाई/2 तो स्लोप हो गया, इस वैल्यू से मेरे को इस वैल्यू पर्टिकुलर निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, ये वैल्यू हो गई, मान लीजिए x मान लेता हूँ, तो x माइनस जीरो ऑफ जीरो माइनस ऑफ -3/2, और इसका जो स्लोप की वैल्यू कितनी है, पाई/2 है ना। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये हमसे सॉल्व हो गया तो हमसे ये हो गया x इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, ठीक है, x हो गया, ये प्लस हो गया 3π/4 है ना, 3π/4 हो गया। तो ये है आपका फाइनल आंसर है ना, 3π/4। तो देखिए सी, इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी दिया जाता है, इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ सिग्नल, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट व्हाट वी नीड टू डू। अगर ये फ्रीक्वेंसी में है तो आप इसका एफ ऑफ टी निकाल लीजिए, टी को जीरो रख दीजिए और 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपको एफ ऑफ टी निकालना आना चाहिए। एफ ऑफ टी निकालने में आपको टाइम लग सकता है ना। अगर आपको सही तरीके से पता है तो देखिए ये बहुत आसान था करना, फट से मैं इसको ला सकता था क्योंकि ये वाला सिग्नल भी एक रिमेम्बरेबल सिग्नल है कि ये -2/2 से -2 से 2 1/2 सैम्पलिंग ऑफ स्क्वायर ओमेगा होता है। फिर वहां से हम, मेरे को आपको थोड़ी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया, इसलिए थोड़ा लंबा चला गया, नहीं तो आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आती है तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका बस वैल्यू निकालना है। सो दिस इज very simple method to calculate the integration of minus infinite to infinite f of t और f of omega, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी वांट टू सी इज टाइम डिफरेंशिएशन, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ओके, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी वी नीड टू सी। See what happens when we do differentiation in time respect, means अगर आपको, if you have been given f of t and you have to find Fourier transform of f of omega, okay, means when we do Fourier transform of f of t we will get f of omega, and if we are doing time differentiation in time domain f of t, what, and then we will do Fourier transform, what we will get, we will get j of omega into f of omega. This we have seen earlier. We have seen, I think in last lecture also we have seen this property, time differentiation property, but now what we need to see is frequency differentiation property, that अगर हम फ्रीक्वेंसी में, जैसे आपका f of omega का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ यू आर सीइंग, व्हाट वी विल गेट f of t, है ना, this we know. But if we are doing differentiation with respect to frequency, okay, and if we are calculating inverse Fourier transform, what we will get जब भी हम इसको d by d ओमेगा करते हैं, ठीक है, df by d ओमेगा, तो हमको क्या मिलता है एक्चुअली, -jt into f of t। देखिए वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे टाइम में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमको जे ओमेगा सामने मिल जा रहा था एफ ऑफ ओमेगा में। यहाँ पे हमको -jt सामने मिलता है एफ ऑफ टी में, है ना। एफ ऑफ टी तो रहेगा ही, -jt आ जाता है, यहाँ पे जे ऑफ ओमेगा आ जाता है, ऑब्वियसली बात है। तो
इतना ही बस फर्क है दोनों में, ठीक है। डी बाय डी ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ये है। इसी का आप दूसरा भी आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मतलब अगर हम लोग एफ ऑफ टी में टी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आपका एफ ऑफ टी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका है ना एफ ऑफ ओमेगा है। तो अगर आप इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टी विथ एफ ऑफ टी व्हाट विल गेट, विल विल गेट, देखिए यहाँ से आप निकालिए, यहाँ से आप देखिए कि सिर्फ टी इंटू एफ ऑफ टी करना होगा तो क्या होगा, माइनस जे को हमको नीचे यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे माइनस जे नीचे ले आइए, तो माइनस जे को अगर आप नीचे लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/-जे, है ना। और आप यहाँ पे डी एफ बाई डी ओमेगा तो मिल ही जाएगा, तो डी एफ बाई डी ओमेगा। और माइनस जे को आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जे कर दीजिए, नीचे जे कर लीजिए, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इंटू डी एफ बाई डी ओमेगा। तो एक और इसी से एक और प्रॉपर्टी भी डिराइव होती है कि अगर आपको एफ ऑफ टी में टी मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको क्या मिलेगा, आप फ्रीक्वेंसी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इफ यू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा, टी इंटू एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जे डी एफ बाई डी ओमेगा। इतना ये प्रॉपर्टी, और ये कहाँ से आया, बेसिकली ये यही आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से आया। तो इतना प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। इससे हम एक क्वेश्चन करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन पल्स। चलिए हम एक काम करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन पल्स करके इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हम सॉल्व करते हैं कि हमको क्या करना है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक गॉसियन पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है ना, गॉसियन पल्स का। तो निकाला जा सकता है क्या, एफ ऑफ टी अगर हमको दे रहा है ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और आपको गॉसियन पल्स निकालना है। देखिए आपको पता है ना कि ई टू द पावर माइनस ए टी कुछ ऐसा होता है ना, और ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर कुछ ऐसा होता है ना, ये होता है गॉसियन पल्स। गॉसियन पल्स जानते हैं ना, हर नेचुरल फिनोमिना गॉसियन पल्स का ही फॉर्म लेता है ना। तो ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर है। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। अब कायदे से आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कन्वेंशनल मेथड में। कन्वेंशनल मेथड में आपको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी है ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यही आप करेंगे। ये आपका तरीका होगा सॉल्व करने का, लेकिन आप दूर दूर से देखेंगे कि इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आपको पता है कि ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। बेसिकली आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, लेट सपोज कि ये एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट सपोज एफ ऑफ ओमेगा आ रहा है, इसका कोई ना कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म तो होगा, लेट सपोज एफ ऑफ ओमेगा है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी एफ बाई डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो आप डी बाई डी टी करेंगे ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का, तो आपको क्या मिलेगा, है ना। इसका आपको मालूम है कि जब भी टाइम में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जे ऑफ ओमेगा सामने आ जाता है, जे ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना होता है, माइनस टू पाई टी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। और अल्टीमेटली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जे ऑफ ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा, है ना। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप ये 2 पाई को नीचे ले जा सकते हैं, तो आपका सिर्फ यहाँ पे ये बच जाएगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या है, इसका जे ओमेगा तो है ही, माइनस 2 पाई नीचे ले गए एफ ऑफ ओमेगा, है ना। ये आपका आ गया। अब आप देखिए अल्टीमेटली क्या हो क्या रहा है कि आप आपको ये पता है क्या कि कोई भी सिग्नल में, जैसे लेट सपोज कि ये अपन सिग्नल मानते हैं, इस सिग्नल में अगर टी मल्टीप्लाई होता है तो होता क्या है, अगर आप ये सिग्नल ई टू द माइनस पाई टी स्क्वायर है, इसमें आप टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t इंटू ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं
तो ऑब्वियसली आपको ये भी मिलता है कि जब देखिए ऊपर हमारा एक प्रॉपर्टी हमने लिया कि टी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको जे डी एफ बाई डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जे डी एफ बाई डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भैया जब इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये भी होता है, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये भी होता है, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है क्या? तो यस, हम जे डी एफ बाय डी ओमेगा को हम इक्वेट कर लेते हैं जे ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा बाय 2 पाई, और यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम जे जे को काट देते हैं, है ना, जे जे को काट देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एफ है, एफ ऑफ ओमेगा को नीचे ले जाते हैं तो 1/f ऑफ ओमेगा इंटू डी एफ कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा बाय 2 पाई तो है ही, है ना, माइनस ओमेगा बाय 2 पाई, और यहाँ पे डी ओमेगा कर लेते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा देखिए, 1/f ऑफ ओमेगा डी एफ क्या मिलेगा आपको, ln, है ना, ln आपका f ऑफ ओमेगा मिलेगा, है ना, ये, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 1/2 पाई तो रहेगा ही, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 भी आ जाएगा, है ना, और प्लस आपका एक्सपोनेंशियल जो अगर कांस्टेंट आपको लेना है तो ये आप कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा f ऑफ ओमेगा, अगर लॉग नेचुरल लॉग को हटाना है तो आप e टू द पावर करना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 पाई, और यहाँ पे e टू द पावर c आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इसको भी हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ ओमेगा जो हम लोग खोज रहे थे वो है आपका e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 पाई। तो अल्टीमेटली ये है आपका आंसर जो आपको e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। This we were finding out what is the Fourier transform of e to the power minus pi t square. This is the Fourier transform of e to the power minus pi t square. इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f होता है तो आप इसको लिख सकते हैं e to the power माइनस 2 पाई f का होल स्क्वायर बाय 4 पाई, जिसमें आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा e to the power माइनस पाई f स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप इसको f के टर्म में भी लिख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है e टू द पावर माइनस पाई f स्क्वायर। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर गॉसियन पल्स, ये आपको याद रखना है, और आपको ये याद रखना है e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 पाई। दिस इज द फोरियर, और ये हम निकाले कैसे, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस बाय यूजिंग ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ t इंटू एफ टी। देखिए इसमें हम कर क्या रहे थे, हम बेसिकली ये t इंटू एफ टी वाला टर्म हम लिए और उसको इक्वेट कर दिए इससे, तो आपका आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी। इसके बाद मेरे ख्याल से ये लेक्चर लंबा हो रहा है, तो हम जो अगला पोर्शन है पार्सेवल्स एनर्जी रिलेशन, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी और टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। For this lecture, this much only. If you have liked this video, then do share it to the needy students, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it so that you get the notification and proper lecture in right time. And okay, thank you, tata, bye bye, see you, have a good day, Jai Hind.